آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو برصغیر پاک و ہند کے مشہور ترین اسکالرز میں سے ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کی فیملی ٹری دکھانے جا رہے ہیں، جنہیں پوری دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے اور جو ہر محاذ پر ہندوؤں اور عیسائیوں کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے آباء و اجداد کون تھے اور یہ لوگ برصغیر کے کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بہن بھائی اور بچے کتنے ہیں، اور موجودہ دور میں یہ لوگ کہاں آباد ہیں، اور اس خاندان کو نائک کیوں کہا جاتا ہے، اس خاندان کے نام کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ ویورز دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، ڈاکٹر ذاکر نائک کے خاندان کو سمجھنے کے لیے ہمیں نائک خاندان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نائک بنیادی طور پہ سنسکرت کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک لیڈر یا سربراہ کے ہیں، جو فوج میں اعزازی طور پہ کیپٹنز وغیرہ کو بھی دیا جاتا ہے، جیسا کہ میسور کے ٹیپو سلطان کی فوج میں بھی ہمیں فوجی نائک یا لیڈر کا عہدہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ چنانچہ موجودہ دور میں نائک خاندان کے لوگ ہندو، مسلمان اور سکھ کمیونٹیز میں پائے جاتے ہیں، جو پاکستان، بنگلہ دیش اور خاص طور پہ انڈیا مہاراشٹرا میں آباد ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خاندان کے جد امجد عبد الرحمن نائک تھے، جو ان کے دادا تھے۔ آپ موجودہ انڈیا کے مہاراشٹرا کے ایک شہر رتنا گیری میں آباد تھے۔ ان کے بارے میں تاریخ میں زیادہ کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کٹر اسلامی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ چونکہ یہ لوگ انڈیا کے ویسٹ کی ساحلی پٹی کوکان میں آباد تھے، تو انہیں کوکنی مسلمان بھی کہا جاتا تھا۔ ویورز، اکثر مورخین ان کوکنی مسلمانوں کا شجرہ عرب تاجروں سے جوڑتے ہیں، جو تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے تھے اور یہاں پہ ہی آباد ہو گئے۔ چنانچہ رتنا گیری میں رہتے ہوئے عبد الرحمن نائک انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے تھے اور مزدوری کر کے گزر بسر کیا کرتے۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے اکثر بچے غریبی کی وجہ سے زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، لیکن ان کا ایک بیٹا حالات سے لڑنا جانتا تھا اور وہ اتنی آسانی سے ہمت ہارنے والا نہ تھا۔ ان کے اس بیٹے کا نام عبد الکریم محمد نائک تھا، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد تھے۔ آپ سن 1937 میں رتنا گیری میں پیدا ہوئے اور اپنی بنیادی تعلیم اسی شہر کے ایک اسکول پٹوار دن ہائی اسکول سے حاصل کی۔ ہزاروں مشکلات میں سب سے بڑا دھچکا انہیں اس وقت لگا کہ جب بہت چھوٹی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی آگے کی پڑھائی پوری کرنے کے لیے ممبئی کی طرف ہجرت کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس اسکول فیس دینے کے بھی پیسے نہ تھے، تو اپنی فیسز پوری کرنے کے لیے وہ گھر گھر جا کے دودھ اور اخبار بیچا کرتے۔ چنانچہ سن 1956 میں انہوں نے انتہائی مشکل سے گرانٹ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد آپ ممبئی سائیکیٹرک سوسائٹی کے پریزیڈنٹ کے عہدے پہ فائز رہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق ان کے والد اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اگلی 3 دہائیوں تک وہ ایک سوشل ورکر اور ایک ڈاکٹر کے طور پہ انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ ان کے کام کو دیکھتے ہوئے انہیں پوری دنیا میں بیشتر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اگست سن 2021 میں دل کی ایک بیماری کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی اور انہیں ممبئی کے مزگاؤں کے علاقے میں دفن کیا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت ملیشیا میں تھے اور ملک بدر ہونے کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے پہ نہ آ سکے۔ اگر ان کی ازدواجی زندگی کی بات کی جائے تو ان کی شادی روشان نائک سے ہوئی، جو ذاکر نائک کی والدہ ہیں۔ اپنے شوہر کی طرح ان کی پرورش بھی ایک غریب گھرانے میں ہوئی، لیکن انہوں نے تمام مشکلات کے باوجود اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم ممبئی سے ہی حاصل کی، جس کے بعد بیچلر اور اسلامک کلچر میں ماسٹرز کی ڈگری ممبئی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد انہوں نے اسٹاک انویسٹمنٹ میں بھی ڈپلومہ حاصل کیا اور اپنی سیونگز کو بہت کامیابی سے اسٹاکس میں انویسٹ کیا۔ یہ انہی کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ذاکر ایک کارڈیک سرجن یعنی دل کا ڈاکٹر بنے، لیکن انہوں نے اسلام کی تبلیغ میں بھی ہمیشہ اپنے بیٹے کا ساتھ دیا۔ موجودہ دور میں روشان نائک 88 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور اپنے بڑے بیٹے محمد نائک کے ساتھ ممبئی میں ہی رہتی ہیں۔
व्यूअर्स, डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक और रोशान नाइक की कुल 3 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। इनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम लुबना नाइक है। इनके बारे में इससे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक की सबसे बड़ी बहन हैं, जो मुंबई में अपने बच्चों के साथ रहती हैं। इनके बाद डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक और रोशान नाइक के बेटे मोहम्मद नाइक आते हैं, जो डॉक्टर जाकिर नाइक के बड़े भाई हैं। आप भी अपने वालिद और भाई की तरह एक मेडिकल डॉक्टर हैं। अगरचे वो अपने भाई के साथ हर महाज पे सरगर्म नजर आते हैं, लेकिन जाकिर नाइक के बरक्स वो पब्लिक स्पीकिंग की बजाय मेडिकल की फील्ड में ज्यादा एक्टिव हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के मुल्क बदर होने के बाद इनकी वालिदा की सारी जिम्मेदारी इनके इसी भाई पे है, जो मौजूदा दौर में मुंबई में अपनी वालिदा और बच्चों के साथ रहते हैं। डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक की 2 छोटी बेटियों के नाम सलवा नाइक और नायला नाइक है। ये दोनों डॉक्टर जाकिर नाइक की सबसे छोटी बहनें हैं, जो मुंबई में ही रहती हैं। इनमें अगर सलवा नाइक की बात की जाए तो कुछ शिया आलिम ये दावा करते हैं कि वो अहले तशी हो गई थी और उन्होंने अहले तशियों में इमरान रसूल से शादी की, जो इंडिया के एक टीवी चैनल विन टीवी के डायरेक्टर हैं। लेकिन इस बारे में कितनी सच्चाई है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी तरह अगर नायला नाइक की बात की जाए तो आप भी डॉक्टर जाकिर नाइक की छोटी बहन हैं। इंडियन अथॉरिटीज के मुताबिक आप डॉक्टर जाकिर नाइक से जुड़ी 5 प्राइवेट कंपनीज की डायरेक्टर रह चुकी हैं और इन्हीं 5 कंपनीज को बुनियाद बनाते हुए डॉक्टर जाकिर पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम भी लगाया जाता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक इन तमाम इल्जामात को झूठा और बेबुनियाद करार देते हैं। उनके मुताबिक ये इल्जाम लगाने का वाहिद मकसद उन्हें इस्लाम की तबलीग करने से रोकना है। नायला नाइक की शादी नौशाद नूरानी से हुई, जो अपने बच्चों के साथ मुंबई में आबाद हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक को लेके इन दोनों को कई दफा इंडियन अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट भी कर चुकी हैं। अब्दुल करीम नाइक और रोशन नाइक के सबसे अहम और सबसे छोटे बेटे डॉक्टर जाकिर नाइक हैं। आपका पूरा नाम डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक है। आप 18 अक्टूबर सन 1965 में मुंबई में पैदा हुए और अपनी बुनियादी तालीम सेंट पीटर स्कूल और कृष्ण चंद कॉलेज मुंबई से हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से MBBS डॉक्टर की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुए और मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू कर दी। व्यूअर्स, सबसे पहली हस्ती जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक को दीन की तरफ आने पे मजबूर किया वो शेख अहमद दीदात थे, जो साउथ अफ्रीका में मुकीम एक इंडियन मुसलमान मुबल्लिग और मनाजिर थे, जिन्होंने ईसाइयों के साथ बेशुमार मनाजरे किए और कई ईसाई आवाज़ों को खामोश होने पे मजबूर कर दिया। शेख दीदात के नाम से ही डॉक्टर जाकिर नाइक को अक्सर दीदात प्लस भी कहा जाता है। इसी तरह दूसरी शख्सियत जिन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक की शख्सियत पे गहरा असर और सूख छोड़ा वो पाकिस्तान के दाई कुरान डॉक्टर इसरार अहमद थे। कहा जाता है कि उन्होंने ही डॉक्टर जाकिर नाइक को ये मशवरा दिया था कि मेडिकल या इस्लाम में से किसी एक को चुना जाए, ना कि दोनों फील्ड्स में आगे बढ़ा जाए। व्यूअर्स, उस वक्त तक किसी ने ना सोचा था कि ये एक आम सा डॉक्टर जो टाई पहनने वाला मॉडर्न इंसान है आगे जाके इस्लाम का इतना बड़ा मुबल्लिग बन जाएगा। व्यूअर्स, अब तक डॉक्टर जाकिर नाइक पूरी दुनिया में 2500 से ज्यादा लेक्चर्स और स्पीचेस रिकॉर्ड करा चुके हैं। इसके साथ साथ कई हिंदू और ईसाई स्कॉलर्स से मुख्तलिफ डिबेट्स भी कर चुके हैं। उनकी सबसे पहली डिबेट सन 2000 में अमेरिका के मशहूर स्कॉलर विलियम चैंपबेल के साथ हुई। ये डिबेट पूरी दुनिया के सामने की गई, जिसमें विलियम को शिकस्त हुई। इसके अलावा सन 2006 में उन्होंने एक हिंदू स्कॉलर रवि शंकर से डिबेट की और उसे भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। व्यूअर्स, उनकी कामयाबी का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि दुनिया के कई मुल्कों ने उन्हें बहुत से अवार्ड से नवाजा, जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE, मलेशिया, गैम्बिया और कई दूसरे ममालिक शामिल हैं। लेकिन इनका बढ़ता हुआ रसूख और गैर मुस्लिमों को इंतहाई आसानी से मुसलमान कर देना इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन के सामने आया, क्योंकि इन्हीं वजूहात की बिना पे इनके खिलाफ बहुत सी साजिशें जन्म लेने लगी। सन 2016 में इंडियन हुकाम ने इन पर दहशतगर्दी, हेट स्पीच, फिरका वारियत और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बेबुनियाद इल्जाम लगाए।
इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ हिंदुस्तान के कई ताकतवर मुस्लिम स्कॉलर्स भी डॉक्टर जाकिर नाइक पे तनकीद करने लगे, जिनमें बरेलवी मकतब फिक्र के असद रजा खान, शिया मकतब फिक्र के कल्बी जवाद नकवी और इसके साथ साथ देवबंदी मकतब फिक्र की तरफ से भी उनके खिलाफ कई फतवे आए। इस सब के पेश नज़र सन 2016 में उन्हें मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, जिसके बाद उनका इंडियन पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया गया। इंडिया छोड़ने के बाद पहले वो सऊदी अरेबिया और फिर बाद में मलेशिया हिजरत कर गए। मलेशिया में उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी दे दी गई। इसके अलावा सऊदी हुक्काम की तरफ से भी उन्हें सऊदी सिटीजनशिप दी गई। व्यूअर्स, उनके मुल्क बदर होने के बाद उनसे जुड़े हर इदारे और हर ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया। अगर उनके खानदान की बात की जाए तो उनकी शादी फरत नाइक से हुई, जो पूना से ताल्लुक रखने वाली इंतहाई मजहबी खातून हैं। आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की वुमेन सेक्शन की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और अपने शोहर के साथ हर मैदान में पेश रहती हैं। यही वजह है कि आजकल वो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ मलेशिया में मुकीम हैं। वो खास तौर पे खवातीन के लिए दुनिया के कई मुल्कों में एक्टिव नजर आती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक और फरत नाइक का एक बेटा और 2 बेटियां हैं, जिनके नाम फारिक जाकिर नाइक, जिक्रा जाकिर नाइक और रुश्ता जाकिर नाइक है। अगर उनके बेटे फारिक की बात करें तो आप 1995 में मुंबई में पैदा हुए और अपनी बुनियादी तालीम मुंबई के इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल से हासिल की। कहा जाता है कि महज 9 साल की उम्र में उन्होंने श्रीनगर में 50,000 के लोगों के मजमे से खिताब किया। इसके साथ साथ 13 साल की उम्र में आप कुरान का हिफ्स मुकम्मल करने में कामयाब हुए। खानदान के मुल्क बदर होने के बाद उन्होंने अपनी बाकी की तालीम सऊदी अरब की अल इमाम मोहम्मद इब्न सऊद यूनिवर्सिटी से हासिल की और मौजूदा दौर में मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो फुटबॉल, स्विमिंग और कराटे में भी बहुत एक्टिव नजर आते हैं। वो भी अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए इस्लामी दावत का काम करना चाहते हैं। इसी तरह अगर डॉक्टर जाकिर नाइक और फरत नाइक की बड़ी बेटी जिक्रा जाकिर नाइक की बात की जाए तो उन्होंने भी बहुत छोटी उम्र में हजारों के मजमों के सामने लेक्चर्स देना शुरू किए। कहा जाता है कि उन्होंने भी बहुत छोटी उम्र में कुरान हिफ्स किया और मौजूदा दौर में रियाद की प्रिंसेस नूरा यूनिवर्सिटी से इस्लामिक एजुकेशन में बैचलर्स कर रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक और फरत नाइक की सबसे छोटी बेटी रुश्ता नाइक भी सऊदी अरब में मुकीम हैं और वहां से ही अपनी तालीम हासिल कर रही हैं। व्यूअर्स, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।